A very good morning to all my lovely Patans. So, welcome back in your computer class after your winter break. So, before your winter break, we were doing chapter number 9, PowerPoint Introduction. Okay, so we have completed the explanation part of the chapter. So, today we are going to do its book exercise, and in the end, I will give you the recap of the chapter. Okay. So everyone just take out your books and open chapter number 9 and we'll start its book exercise. Okay, so let's start. So we'll do the book exercise of chapter 9 now. A part is tick the correct answer. First one, a presentation program which is developed by Microsoft is dash. So, which presentation program is developed by Microsoft? Microsoft ने कौन सा presentation program develop किया है? Your options are Word, Paint, PowerPoint. So, what will be the answer? Yes, everyone. Those who know the answer, they can raise your hands. So, the answer is PowerPoint. Very good. So, tick on the box given in front of PowerPoint. I am highlighting the answers. Okay, and you have to tick mark in the box. Okay, page 101. Now come to the next one. A PowerPoint presentation is also called as theme, slideshow, slide view. So what will be the answer? Yes, Lakshita. Very good. The answer is slideshow. So tick on the box given in front of slideshow. And everyone keep doing with me, and if anyone is having any doubt, you can raise hands. I'm here to help you. Now come to the third one. Dash displays a large view of the current slide on right side of the window. Dash displays a large view of the current slide on the right side of the window. So I'll show you. सो इसमें पूछा गया है कि जो आपका राइट साइड पे, दिस इज़ द राइट साइड, तो राइट साइड पे जो ये लार्ज व्यू आपको नज़र आ रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, सो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन डिस्प्ले करता है ये लार्ज व्यू? सो व्हाट विल बी द आंसर? सी द ऑप्शंस. नोट्स पेन, रिबन, स्लाइड पेन. सो व्हाट विल बी द आंसर? यस, yes, Rudra. Very good. The answer is slide pane. So everyone tick on the box given in front of slide pane. Now come to the fourth one. Dash buttons allow you to quickly change the way your presentation is displayed on the screen. So which buttons? वो कौन से बटन है जो आपको अलाउ करते हैं ताकि आप जल्दी से, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन डिस्प्ले हो रही है, उसको आप चेंज कर सकें? लाइक यू, दिस इज़ द प्रेजेंटेशन. ओके, और ये बटन्स होते हैं आपके स्टेटस बार पे. इनको हम क्या बोलते हैं? व्यू बटन्स, जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे देखना है, व्यू करना है. बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू होता है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल. नेक्स्ट इज़ स्लाइड सॉर्टर व्यू. तो जैसे ही आप स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे, सी दिस इज़ द स्लाइड सॉर्टर व्यू. ओके, दिस इज़ द स्लाइड सॉर्टर व्यू. So this way you can see the व्यू. इस तरीके से आप व्यू देख सकते हैं. ओके,
So the answer of fourth one will be view buttons. So view बटन से हम जल्दी से चेंज कर सकते हैं the way we want to see our presentation on the screen. Okay. Now the next one, you can press dash key to end the slideshow anytime. हम कौन सी की प्रेस कर सकते हैं अगर हमें किसी भी टाइम स्लाइड शो को एंड करना है? योर ऑप्शंस आर CTRL, ESC, Alt, control key, escape key, Alt key. So what will be the answer? Yes, think everyone. Yes, Vanshika, the answer is escape key, the first key of the keyboard. Okay, तो जब आप escape key को प्रेस करोगे तो आप किसी भी टाइम स्लाइड शो से एग्जिट कर सकते हो. लाइक आई विल शो यू. ये आपकी प्रेजेंटेशन है, हम इसको स्लाइड शो व्यू करते हैं. ये स्लाइड शो व्यू आ रहा है. तो जब भी आपको स्लाइड शो से बाहर आना हो तो आपके जो कीबोर्ड की फर्स्ट की है एस्केप की, आप इसको प्रेस करेंगे एंड यू विल एग्जिट फ्रॉम द स्लाइड शो व्यू. ओके, नाउ कम टू द ट्रू फॉल्स. फर्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ पेजेस ऑन एनी वन टॉपिक इज कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन. किसी भी सिंगल टॉपिक पे जब एक ग्रुप ऑफ पेजेस होते हैं, लाइक आई हैव गिवन यू द एग्जांपल कि प्रेजेंटेशन क्या होता है. प्रेजेंटेशन इज़ लाइक अ बुक. प्रेजेंटेशन इज़ लाइक अ बुक. बुक में जैसे बहुत सारे पेजेस होते हैं, सो इसी तरह प्रेजेंटेशन में हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं. ओके, सो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ पेजेस ऑन एनी वन टॉपिक इज कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. सो विल राइट हियर कैपिटल T in the first box. Okay, now come to the second one. PowerPoint presentation is known as a document. PowerPoint presentation को हम document भी बोलते हैं. Is it true or false? Yes, Shivansh. Yes, the answer is false. So if it is false, what we call it? Presentation को हम और क्या बोलते हैं? We call it slideshow. Now come to the third one. Title bar shows the name of the displayed presentation. Title bar shows the name of the displayed presentation. जो presentation display हो रही है, title bar आपको उसका नाम show करता है. So you can see here, this is the title bar and you can see what is here. Name of the presentation, and this is name of the application we are using. Okay, so the statement will be true. So write down capital T in the third box. Everyone keep doing with me, and if anyone is having any doubt you can ask. Now the fourth one. Slide pane displays the notes for the current slide. Is it true? Slide pane notes display करते हैं current slide के लिए. आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे नोट्स बोल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं स्लाइड पेन की. तो स्लाइड पेन क्या करता है? हमें लार्ज व्यू डिस्प्ले करता है स्लाइड का. सो दिस इज false. So write down capital F in the fourth one. Now come to the fifth one. You can also press F5 key for slideshow view.
सो इज़ इट ट्रू और फॉल्स? आप स्लाइड शो व्यू करने के लिए F5 की भी प्रेस कर सकते हैं. सो लाइक आई शो यू, दिस इज़ द प्रेजेंटेशन. अगर आपको इसका स्लाइड शो व्यू करना है, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस द F5 की, F5 फंक्शन की हेयर. सो व्हेन आई प्रेस, आप देखेंगे क्या होगा. You will see. So what is this? This is the slideshow view. So this statement will be true. ये statement क्या होगी? True. क्योंकि जैसे ही हमने F5 की प्रेस की, आपका स्लाइड शो व्यू आ गया. Okay. So everyone complete it, and those who are done, they can come to page number 102. We'll do the fill in the blanks here. First is, one page of your presentation is called. आपकी presentation के single page को, one page को हम क्या बोलते हैं? What we call it? Yes, who will give the answer? Yes, tell me who will give the answer. Yes, Mannat. Yes, beta, good. The answer is slide. प्रेजेंटेशन के एक पेज को हम बोलते हैं स्लाइड. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Dash allows to type titles, body text and bulleted list in the slide. So कौन अलाउ करता है कि हम अपने स्लाइड्स पे टाइटल टाइप करें, बॉडी टेक्स्ट डालें, बुलेटेड लिस्ट डालें? सो व्हाट विल बी द आंसर? कहाँ पे टाइप करते हो आप टेक्स्ट? लाइक ये आपकी प्रेजेंटेशन है. अगर मैं एक और न्यू स्लाइड ऐड करती हूँ, सो ये जो डॉटेड बॉक्स हैं जहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, व्हाट वी कॉल इट? क्या बोलते हैं हम इनको? यस, वी कॉल इट टेक्स्ट प्लेस होल्डर्स. सो विल राइट हियर टेक्स्ट प्लेस holders. Okay, and we'll highlight it. So everyone write down text placeholders in the second fill up. And when you are writing the answer, be aware about the spellings. Okay, don't do the spelling mistakes. Now come to the third one. PowerPoint assumes that new presentation begin with the dash slide. सो पावर पॉइंट अज्यूम करता है कि आप कोई भी जब न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं, तो वो कौन सी स्लाइड से स्टार्ट होती है? यस वंशिका, यस गुड. टाइटल स्लाइड. हमेशा आपको टाइटल स्लाइड ही मिलेगी जब भी आप कोई न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, सो राइट डाउन टाइटल slide. Title slide in the third one. Now come to the fourth. A dash displays one slide at a time using the entire screen. So what will be the answer here? पूरी स्क्रीन पे, एंटायर मीन्स कंप्लीट स्क्रीन. ये जो आपकी कंप्लीट स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, जब एक के बाद एक एक करके स्लाइड आप जब इस पे देखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? सो द आंसर इज स्लाइड शो. सो राइट डाउन स्लाइड शो in the fourth fill up, and I am highlighting it so you can see
the answer clearly. Now come to the fifth one. The default extension of PowerPoint 2010 file is, like we had done MS Word. तो MS Word में जब हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन से सेव होते हैं? .docx. So in the same way, when we are working in PowerPoint, the files are saved with the extension .pptx. Okay. So the answer is .pptx. Whatever software you are going to use, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और जब आप उसमें भी कोई भी फाइल बनाते हैं, सो हर एक सॉफ्टवेयर का, हर एक एप्लीकेशन की अपनी एक्सटेंशन फाइल होती है. ओके. सो उसी तरह पावरपॉइंट की जो एक्सटेंशन है वो क्या है? .pptx. सो हियर विल राइट .pptx. Okay, so write it down. Complete it fast. Now the F part, application based question. Ashish teacher told him the name of the buttons which are used to minimize the program window, restore the window to full size and close the window. Which buttons are used to do all these activities? So बेसिकली इसमें क्या बोला है कि आशीष की टीचर ने उनको नेम बताए बटन्स के जिनसे हम प्रोग्राम विंडो को मिनिमाइज़ करते हैं, वापस से उसको रीस्टोर कर देते हैं फुल साइज़ पे, यानी कि मैक्सिमाइज़ करते हैं और क्लोज़ करते हैं विंडो को. सो इन बटन्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दीज बटन्स. सो ये जो एक्टिविटीज़ हम इन बटन से करते हैं, what we call these buttons? We call them window control buttons. So here you will write Windows control buttons. Okay, I am writing the answer here, and the answer is window control buttons. Okay, this is the answer of F part, application based question. So everyone write it down, window control buttons. Okay. So in this chapter we have learnt about the PowerPoint presentation. हम PowerPoint कैसे start करते हैं, PowerPoint window के components के बारे में. Okay. न्यू स्लाइड कैसे ऐड करते हैं. सो ये बेसिकली आपकी PowerPoint विंडो है. मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ. दिस इज़ द टाइटल बार, जहाँ पे आपको फाइल का, अपने प्रेजेंटेशन का नाम और जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम मिलेगा. टाइटल बार के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ से हम सेव बटन, अंडू बटन, ओपन, न्यू बटन्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू सेव आवर टाइम. देन वी हैव फाइल टैब. फाइल टैब हमें बैक स्टेज व्यू देता है. ओके. बैक स्टेज व्यू में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि आपकी प्रेजेंटेशन का साइज़ कितना है, उसमें कितनी स्लाइड्स हैं, और अगर आपने कुछ स्लाइड्स को हाइड कर रखा है तो वो भी आपको यहाँ शो होगा. आपको टाइटल भी यहाँ पे शो होगा किस, एंड यू कैन सी द डेट लास्ट मॉडिफाइड, मीन्स लास्ट आपने कब उसमें चेंजेस किए थे, कब आपने फाइल अपनी क्रिएट की थी. ओके. और ऑथर कौन है? ऑथर में हमेशा आपका नाम आएगा जो आपने यूज़र नेम डाला है. ओके. यूज़र नेम मीन्स जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, हेयर यू कैन सी, सो यही नेम आपको वहाँ पे ऑथर में मिलेगा. ओके. सो दिस इज़ फाइल टैब. फाइल टैब में यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं ताकि और कोई आपके डॉक्यूमेंट को, आपकी प्रेजेंटेशन को आप
डॉक्यूमेंट जब हम MS वर्ड के बारे में बात करेंगे देन वी कैन प्रोटेक्ट आवर डॉक्यूमेंट. नाउ वी आर डूइंग प्रेजेंटेशन, सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंटेशन बाय सेटिंग द पासवर्ड, ताकि कोई इसको ओपन नहीं कर सके और कोई उसमें चेंजेस ना कर सके. ओके. देन विंडो कंट्रोल बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, और इसको हम रीस्टोर डाउन भी बोलते हैं. एंड देन क्लोज बटन. ओके. दिस इज़ द स्लाइड्स पेन, जहाँ पे आपको आपकी स्लाइड का लार्ज व्यू दिखता है. जो भी स्लाइड आप यहाँ पे स्लाइड टैब में सिलेक्ट करेंगे वही स्लाइड आपको यहाँ पे राइट साइड पे स्लाइड पेन में शो होगी. ओके. नीचे क्लिक टू ऐड नोट्स है, ये आपका नोट्स पेन है, जहाँ पे आप अपनी करंट स्लाइड के लिए कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स राइट डाउन कर सकते हैं. हेयर दिस इज़ द नॉर्मल व्यू, ये मैंने आपको बताया ये व्यू बटन्स होते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू होता है. नॉर्मल व्यू में आपके पास लेफ़्ट साइड पे स्लाइड्स टैब और आउटलाइन टैब होता है. स्लाइड टैब में आप हर एक स्लाइड को देख सकते हैं, उसका एक छोटी पिक्चर की फॉर्म में along with the text and pictures, जो भी उसमें आपने इंसर्ट किया है, डाला है. आउटलाइन टैब में आपको सिर्फ टेक्स्ट नज़र आएगा, कोई पिक्चर नज़र नहीं आएगी. ओके. और आउटलाइन में भी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं. आउटलाइन टैब में आप सीधा यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं. ओके. देन जो ये आपको डॉटेड बॉक्स नज़र आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं टेक्स्ट प्लेस होल्डर्स. हेयर यू कैन टाइप द टेक्स्ट, आपको जस्ट क्लिक करना है और टेक्स्ट को टाइप करना है. ओके. टेक्स्ट टाइप करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया है, आप इस प्लेस होल्डर पे जब ऊपर माउस पॉइंटर को मूव करेंगे इस लाइन पे, तो आपका जो पॉइंटर होगा वो 4 हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा. व्हेन यू विल क्लिक ऑन इट वो सिलेक्ट हो जाएगा. और अब आप इस टेक्स्ट पे कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई द फ़ॉन्ट, you can set the size, you can make it bold, italic, underline, shadow, you can change the color, text color, you can change the text alignment. Okay. View buttons I have told you. And this is ribbon, जहाँ पे आपको हर एक टैब के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे और हर एक ग्रुप के अंदर अलग अलग आपको कमांड्स शो होंगे. So ribbon includes the groups and the commands. Adding a new slide, कोई भी अगर न्यू स्लाइड आपको ऐड करनी है तो पहले आपको देखना आपको कहाँ ऐड करनी है. अगर आपको सपोज़ थर्ड स्लाइड के बाद ऐड करनी है तो आप थर्ड स्लाइड पे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देंगे. स्लाइड्स ग्रुप में न्यू स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड हो जाएगी. ओके. और या इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे शो कर रहे हैं CTRL+M, Ctrl+M की से भी आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं. ओके. सेविंग अ प्रेजेंटेशन सेम है, जैसे आप डॉक्यूमेंट सेव करते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसी तरह आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन सेव कर सकते हो. 3 मेथड्स हैं, या तो आप सेव बटन जो क्विक एक्सेस टूल बार पे है उस पर क्लिक करके सेव करें, या फिर आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+S, और एल्स यू कैन यूज़ द फाइल टैब, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन एंड देन यू कैन डू. ओके. And for running the slideshow you can use the slideshow tab, or you can press F5 फंक्शन की. F5 फंक्शन की भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप स्लाइड शो टैब पे जाके भी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द करंट स्लाइड, वहाँ से भी कर सकते हैं. और यू कैन यूज़ फ्रॉम हेयर ऑल्सो. ये जो ऑप्शन है आपका, दिस इज़ द स्लाइड शो, यू कैन सी. यहाँ से भी आप स्लाइड शो व्यू देख सकते हैं. ओके. एंड यू कैन ऑल्सो सेट द एनिमेशन, लाइक यहाँ पे एनिमेशन ट्रांजिशन है. ओके. इसमें आप अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं कि आपको ये जब आप स्लाइड शो व्यू करेंगे तो आपको कैसे नज़र आए.
फेड होके, फ्लाइन करके, फ्लोट करके, स्प्लिट करके, वाइप करके. So this way you can set, बाउंस करके. सो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो और इसी तरह आप ये किसी पिक्चर पे भी अप्लाई कर सकते हो. ओके. इसी तरह आप ट्रांजिशन सेट कर सकते हो. ट्रांजिशन में क्या होता है, मीन्स आपकी एक स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड कैसे अपीयर होगी वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. आप हर एक स्लाइड के लिए अलग ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो या सबके लिए सेम आप यूज़ कर सकते हो. तो जब आप सेम यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना होगा. देन यू हैव टू सेव इट. ओके. सो this is your chapter, and if anyone is having any doubt, any query, I'm here to help you. You can ask in the Zoom session. Okay, till then, take care. Thank you. And also complete your exercise.